السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈو یو نو، اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے مکمل تعارف پر۔ آج ہم جانیں گے پاکستان کا سرکاری نام، رقبہ، جغرافیہ، ماحولیاتی حقوق، سرحدوں کی مکمل تفصیل، ساحلی پٹی اور بحری حدود۔ ناظرین، پاکستان کا سرکاری نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ یہ نام دو اہم چیزوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ اسلامی کیونکہ اسلام ریاست کا مذہب ہے، جمہوریہ کیونکہ حکومت عوام کے ووٹ سے منتخب ہوتی ہے۔ یہ نام پہلی بار 1956 کے آئین میں شامل کیا گیا، جب پاکستان کو باضابطہ طور پر اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا۔ لفظ پاکستان بھی خود بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ نام 1930 کی دہائی میں چودھری رحمت علی نے تجویز کیا تھا۔ ناظرین، پاکستان 1947 میں وجود میں آیا جب برصغیر کی تقسیم ہوئی۔ یہ ایک نظریاتی ریاست ہے جو اسلام کے اصولوں پر قائم کی گئی۔ پاکستان کا کل رقبہ تقریباً 8,81,913 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ دنیا کا 33واں بڑا ملک ہے۔ پاکستان کو جغرافیائی لحاظ سے 5 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جس میں نمبر 1 پر شامل ہے شمالی پہاڑی علاقہ۔ یہ دنیا کے بلند ترین پہاڑوں کا گھر ہے۔ کیٹو دنیا کا دوسرا بلند پہاڑ ہے۔ ہمالیہ، کراکرم، ہندو کش سلسلہ شامل ہے، جبکہ نمبر 2 پر شامل ہے دریائے سندھ کا میدان۔ یہ پاکستان کا زرعی مرکز ہے۔ یہاں گندم، چاول، کپاس اور گنا اگایا جاتا ہے۔ نمبر 3 پر بات کریں تو شامل ہے سطح مرتفع پوٹوہا۔ یہ علاقہ معدنی وسائل سے بھرپور ہے۔ نمبر 4 پر ہے صحرائی علاقے، جس میں تھر، چولستان اور تھل شامل ہے، اور نمبر 5 پر بلوچستان کا پہاڑی اور نیم صحرائی علاقہ ہے۔ یہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، لیکن آبادی بہت کم ہے۔ ناظرین، پاکستان کا جغرافیہ اسے ایک اہم اسٹریٹجک ملک بناتا ہے۔ پاکستان میں ماحولیاتی حقوق کا تصور بہت اہم ہے۔ آئین پاکستان کے مطابق ہر شہری کو زندگی کا حق حاصل ہے، اور عدالتوں نے اس میں صاف ماحول کا حق بھی شامل کیا ہے۔ ماحولیاتی حقوق میں شامل ہیں صاف ہوا، صاف پانی، شور سے پاک ماحول، قدرتی وسائل کا تحفظ۔ اگر ہم بات کریں اہم ادارے کی تو پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ایک اہم ادارہ ہے۔ ناظرین، اگر ہم چند بڑے مسائل کی بات کریں تو فضائی آلودگی، پانی کی کمی، جنگلات کی کٹائی، موسمیاتی تبدیلیاں چند بڑے مسائل میں شامل ہیں۔ ان مسائل کے حل کے لیے حکومت پاکستان نے بلین ٹری سونامی، کلین گرین پاکستان جیسے منصوبے شروع کیے ہیں۔ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کی کل زمینی سرحد تقریباً 6,774 کلومیٹر ہے۔ آئیے آپ کو سرحدوں کی تفصیل بتاتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاک بھارت سرحد کی، تو یہ سرحد پاکستان کی سب سے لمبی سرحد ہے، جس کی لمبائی 3,323 کلومیٹر ہے۔ یہ سرحد 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ انٹرنیشنل بارڈر، لائن آف کنٹرول، ورکنگ باؤنڈری شامل ہے۔ لاہور واگا بارڈر پر ہر روز پرچم اتارنے کی تقریب ہوتی ہے۔ یہ سرحد دنیا کی سب سے حساس سرحدوں میں سے ایک ہے۔ ناظرین، آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں پاک افغان سرحد کی، تو یہ سرحد ڈیوڈ لائن کہلاتی ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 2,640 کلومیٹر ہے۔ اس سرحد کی خصوصیات کی بات کریں تو یہاں پہاڑی اور دشوار گزار راستے اور قبائلی علاقے موجود ہیں۔ اہم کراسنگ پوائنٹس کی بات کریں تو تورخم اور چمن بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ سرحد سیکیورٹی کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں
हैं पाक ईरान सरहद की, तो इस सरहद की लंबाई तकरीबन 959 किलोमीटर है। ये सरहद बलूचिस्तान में वाक़या है। इसकी खुसूसियात की बात करें तो ज़्यादातर सहराई इलाका, कम आबादी वाले इलाके मौजूद हैं और अहम क्रॉसिंग में तफनान शामिल है। ये सरहद तिजारत के लिए बहुत अहम है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पाक चीन सरहद के बारे में। तो पाक चीन सरहद की लंबाई तकरीबन 523 किलोमीटर है। ये सरहद शुमाल में वाक़या है। इस सरहद की अहम मकाम की बात करें तो खुंजराब पास, जो कि दुनिया का बुलंद तरीन बॉर्डर क्रॉसिंग है, शामिल है। नाज़रीन, ये सरहद इंतहाई दोस्ताना और पुरअमन समझी जाती है। इस सरहद के जरिए CPEC चीन को पाकिस्तान से जोड़ता है। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की साहिली पट्टी की। तो पाकिस्तान की साहिली पट्टी बहरे अरब के साथ वाक़या है और इसकी कुल लंबाई तकरीबन 1040 किलोमीटर है। ये साहिल पाकिस्तान के जनूबी हिस्से में फैला हुआ है और 2 सूबों पर मुश्तमिल है, जिसमें बलूचिस्तान और सिंध शामिल है। ये साहिली इलाका न सिर्फ जोग्राफियाई बल्कि मुआशी, दिफाई और माहौलियाती लिहाज से भी बेहद अहमियत रखता है। अगर हम साहिली पट्टी की तकसीम की बात करें तो पाकिस्तान की साहिली पट्टी को 2 बड़े हिस्सों में तकसीम किया जाता है, सिंध का साहिल और बलूचिस्तान का साहिल। अगर हम सिंध के साहिल की बात करें तो सिंध के साहिल की लंबाई तकरीबन 350 किलोमीटर है। यहाँ बड़े शहर और बंदरगाहें मौजूद हैं। सनती और तिजारती सरगर्मियाँ ज़्यादा हैं और इसी तरह अहम मकामात में कराची बंदरगाह, पोर्ट कासिम, कैटी बंदर शामिल है। ये हिस्सा ज़्यादा तरक्की याफ्ता है और पाकिस्तान की मईशत में बहुत अहम किरदार अदा करता है। बात करते हैं बलूचिस्तान साहिल की, तो इस साहिल की लंबाई तकरीबन 700 किलोमीटर है। ये साहिल ज़्यादातर कुदरती और कम आबादी वाला इलाका है। इस साहिल की खुसूसियत ये है कि यहाँ पहाड़ी और चट्टानी इलाके हैं, खूबसूरत साहिल हैं और आबादी बहुत कम है। नाज़रीन, अहम मकामात की बात करें तो गवादर और माड़ा, पिसनी, जेवानी शामिल हैं। ये साहिल सेहत और मुस्तकबिल की तरक्की के लिए बहुत अहम समझा जाता है। नाज़रीन, पाकिस्तान की साहिली पट्टी पर कई अहम बंदरगाहें मौजूद हैं, जिसमें कराची पोर्ट, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह है। ज़्यादातर दरामद और बरामद यहाँ से होती है, जबकि पोर्ट कासिम सनदी बंदरगाह कराची के करीब वाक़या और गवादर पोर्ट पाकिस्तान में वाक़या EPEC का अहम हिस्सा है, जो कि मुस्तकबिल में आलमी तजारती मरकज़ बनने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, पाकिस्तान की साहिली पट्टी मुआशियत में बहुत अहम किरदार अदा करती है, जिसमें माहीगीरी, जो कि लाखों लोगों का रोज़गार है, मछली की बरामदात के साथ साथ समुद्री रास्तों के जरिए तिजारत शामिल है। नाज़रीन, पाकिस्तान की साहिली पट्टी को कई मसाइल का सामना है, जिनमें समुद्री आलूदगी, तेल का रसाव, मैंग्रोव्स की कटाई, मौसमियाती तब्दीली और समंदर की सतह में इजाफा शामिल है। नाज़रीन, पाकिस्तान की साहिली पट्टी न सिर्फ कुदरती खूबसूरती से भरपूर है, बल्कि मुआशियत का अहम हिस्सा है, तिजारत का मरकज़ है, दिफाई लिहाज से अहम है और मुस्तकबिल में तरक्की के बड़े मौके रखती है। नाज़रीन, आइए अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की बहरी हदूद की। पाकिस्तान की बहरी हदूद वो समुद्री इलाका है जो इसके साहिल से आगे बहीरे अरब में फैला हुआ है, जहाँ पाकिस्तान को मुख्तलिफ किस्म की कानूनी, मुआशी और दिफाई हकूक हासिल होते हैं। ये हदूद बैनुल अक़वामी कानून, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत तय की गई हैं। पाकिस्तान की बहरी हदूद को बुनियादी तौर पर 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इलाकाई समंदर यानी टेरिटोरियल सी, मोतसिल यानी खंडगी जोन, खसूसी इक़्तिसादी जोन यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कॉन्टिनेंटल शेल्फ शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेरिटोरियल सी की, तो ये पाकिस्तान के साहिल से शुरू होकर 12 नॉटिकल मील यानी तकरीबन 22 किलोमीटर तक फैला होता है। इस इलाके पर पाकिस्तान की मुकम्मल खुद मुख्तारी होती है। यहाँ के पानी, फिजा और समंदर की तह सब पाकिस्तान के कंट्रोल में होते हैं। गैर मुल्की जहाज गुजर सकते हैं, लेकिन इन्हें कवानीन की पाबंदी करना होती है। आसान अल्फाज में अगर हम बात करें तो ये हिस्सा बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मुल्क की ज़मीन हो। आगे बढ़ते हैं और
बात करते हैं गोंडगी जोन की, तो ये इलाका साहिल से 24 नॉटिकल मील यानी तकरीबन 44 किलोमीटर तक फैला होता है। यहाँ पाकिस्तान मुकम्मल कंट्रोल नहीं रखता, लेकिन निगरानी कर सकता है। पाकिस्तान यहाँ कानून नाफिज कर सकता है, जैसे स्मगलिंग रोकना, गैर कानूनी दाखिला रोकना। ये एक सिक्योरिटी बेल्ट की तरह काम करता है। असल बात करते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की, तो ये सबसे अहम हिस्सा है। ये साहिल से 200 नॉटिकल मील यानी तकरीबन 370 किलोमीटर तक फैला होता है। इसका रकबा पाकिस्तान का तकरीबन 2,90,000 मुरब्बा किलोमीटर है। मजीद बात करें तो पाकिस्तान मछली पकड़ने का मुकम्मल हक, तेल और गैस की तलाश, मादनी वसाइल निकालने का हक, समुद्री तवानाई जैसे हवा और लहरों से बिजली, इस पर हक रखता है। यहाँ दूसरे ममालिक जहाज चला सकते हैं, लेकिन वसाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते। और आखिर में बात कर लेते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ की, तो ये समंदर की तह का वो हिस्सा है जो पाकिस्तान की ज़मीनी सरहद का तसलसल होता है। पाकिस्तान ने इसमें तोसी हासिल की है। 2015 में पाकिस्तान को अपनी कॉन्टिनेंटल शेल्फ को 350 नॉटिकल मील तक बढ़ाने की इजाज़त मिली, जिसका फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान मज़ीद तेल, गैस और मादनी वसाइल तक रसाई हासिल कर सकेगा और समुद्री वसाइल पर ज़्यादा कंट्रोल कर सकेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान की बहरी हदूद बहुत अहम है, ख़ासतौर पर इन वजूहात की बिना पर। इसमें माहीगीरी की सनत, तेल और गैस के ज़खायर, समुद्री तिजारत शामिल हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और पाकिस्तान की मुकम्मल कहानी जानने के लिए हमारे चैनल डू यू नो को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।